Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 4 and the name is The Nervous System. So in this chapter we are going to learn about organs of the nervous system. Nervous system में कौन-कौन से organs included हैं, and we are also going to learn about sense organs. So let's start with this warm-up exercise. Here you can see there is a picture of human eye. Human eye की एक picture है, and you have to it has been labeled wrongly. इनकी जो labeling है वो गलत की गई है. So write the correct label in the box alongside. तो जो भी सही labeling है वो आपको यहाँ पे करनी है. So do it yourself. One of the most important organ system in the body is the nervous system. तो nervous system हमारी body का एक बहुत ही important part है. ये बहुत ही important organ system है. ये क्या करता है? ये control करता है सारे दूसरे systems को. Nervous system information को store करता है, feelings को control करता है और motions को direct करता है. Means कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है. And helps the body to respond to changes in the environment. और environment में जो भी changes हैं उसको respond करने में भी ये nervous system help करता है. How do you taste, smell, see and hear? ये चारों काम आप कैसे करते हो? किसी चीज़ को देखना हो, किसी चीज़ को taste करना हो, किसी चीज़ को सुनना हो या smell करना हो, ये सब काम आप कैसे करते हैं? How do you think and dream? आप चीज़ों को कैसे सोच पाते हो या किसी चीज़ के बारे में सपने कैसे देख पाते हो? How do you remember different things? अलग अलग चीज़ों को आप कैसे याद रख पाते हो कि मेरे साथ पिछले साल ऐसा हुआ था या जो है कल मेरे साथ ऐसा हुआ था. तो चीज़ों को कैसे आप याद कर पाते हो? How do you feel pain and pleasure? आपको अगर चोट लगती है तो आप कैसे फील कर पाते हो चीज़ को, या फिर आपको कोई खुशी है तो वो खुशी किस चीज़ की वजह से आपको फील होती है? Have you ever thought how and why you perform so many activities in your daily life? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे काम आप अपनी daily life में कैसे कर पाते हैं? So you do all these things with the help of your body's nervous system. आप ये सारी चीज़ें अपने nervous system के help से कर पाते हैं. The nervous system controls all the other body organs. ये nervous system हमारे जितने भी body organs हैं उन्हें control करने का काम करता है. It is one of the most important system of our body. ये हमारी body का काफ़ी ज़्यादा important system है. It makes us aware of our environment. ये हमें हमारे environment के बारे में बताता है, उसे aware रखता है. And here you can see this is our nervous system जिसमें brain, spinal cord और nerves ये तीनों का combination होता है. Organs of the nervous system. अब कौन-कौन से organs हैं nervous system के? So the nervous system consists of the brain, spinal cord and the network of nerves that extend to every part of the body. जो body के हर एक part तक जाते हैं, extend होते हैं. Now here you can see organs of the nervous system. कौन-कौन से organs हैं nervous system के? पहले आता है cerebellum. This part is cerebellum. उसके ऊपर आप देख सकते हो cerebrum है. फिर आता है आपका medulla, pituitary gland. Here it can be seen. फिर आता है आपका spinal cord, vertebrate and nerves means नसें. So these all are a part of nervous system. Now children, do you know the nervous system can transmit signal at the speed of 100 meters per second. 100 meter per second के speed से ये signals को send कर सकते हैं. Let's learn about the brain. So the brain is the control center of the human body. ये human body का control center है. ये हर चीज़ को control करने का काम करता है. It receives information from all the parts through different nerves. ये क्या करता है? information को लेता है हमारे different पार्ट से, डिफरेंट नर्व से. तो मान लेते हैं मेरे यहाँ पे एक मस्किटो ने बाइट किया तो क्या होगा? यहाँ जो मेरे नर्व्स हैं वो जो है सिग्नल भेजेंगे मेरे ब्रेन को कि यहाँ पे मस्किटो बैठा हुआ है, वो मुझे काट रहा है, तो मेरा मन करेगा इसे स्क्रैच करने का. सो ये नर्व ने मेरे ब्रेन को सिग्नल भेजा, फिर ब्रेन ने मुझे वापस सिग्नल भेजा कि आई हैव टू स्क्रैच दिस पार्ट, इस पार्ट को मुझे स्क्रैच करना है.
एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट 1.4 kg। अगर हम अडल्ट ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो इसका वजन 1.4 kg होता है एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स, और इसमें बहुत सारे हजारों टाइनी मीन्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोनी स्कल, और इस ब्रेन के चारों तरफ आपको एक स्कल दिखेगा जो इसे प्रोटेक्ट करता है। ये काफी ज्यादा हार्ड होता है और बोन से भरा हुआ होता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन and also inside the brain is filled with a clear fluid which serves as a cushion against jerks and injuries। तो हमारे ब्रेन और हमारे स्कल के बीच में जो है कुछ लिक्विड फ्लूइड है जो क्या करता है, ब्रेन को बचाता है। किसी भी मान लो कि मेरा कहीं पे अगर सिर टकरा जाता है तो वो टक्कर मेरे सिर को होगी लेकिन ब्रेन सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड जो है क्या करता है, जर्क से उस ब्रेन को बचाता है। तो किसी भी तरीके के झटके से ब्रेन को वो फ्लूइड बचाने का काम करता है। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो ब्रेन है अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है एंड ईच पार्ट डज इट्स ओन वर्क। हर पार्ट अपना खुद का काम करता है। तो पहले बात करते हैं हम सेरेब्रम की। सेरेब्रम इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम क्या है? ब्रेन का ये ऊपरी हिस्सा, ये है हमारा सेरेब्रम। It is dome shaped and is the largest part of the brain। ये डोम शेप में होता है, डोम ऐसे होता है तो ये डोम शेप में आप देख सकते हो व्हाइट पार्ट, और ये क्या है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। द सेरेब्रम कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, ये हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करता है, लर्निंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, और हमारे जो बेसिक इंटेलिजेंस है उन सबको कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम का है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन, हमारे जो सेंस ऑर्गन है आईज, नोज, ये इन सबको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट कम्स सेरेबेलम। सो सेरेबेलम इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का लोअर पार्ट है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सेरेबेलम। इट इज मच स्मॉलर देन द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम से काफी छोटा होता है। इट्स लोकेटेड टूवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होता है। इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट, ये मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बैलेंस, और हमें अपना बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर आती है बारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की। सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज अ स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये स्टेम के शेप का एक स्ट्रक्चर है एंड इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। द मेडुला कंट्रोल्स ऑल आवर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ये जितनी भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में, तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है जो हमारे बस में नहीं होती, ऐसी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। द मेडुला वर्क्स इवन व्हाइल वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये हमारे बॉडी में वर्क करता है और अपना काम करता रहता है। द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो हमारे ब्रेन का जो राइट साइड है वो क्या करता है, ये जो राइट साइड है वो हमारे लेफ्ट साइड के सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सिमिलरली द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड, अब लेफ्ट हाफ जो है वो राइट साइड के सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। Thus, when one side of the brain is damaged, the opposite side of the body gets affected. इसीलिए ब्रेन का जो भी पार्ट डैमेज हो जाता है, मीन्स अगर राइट साइड डैमेज होगा तो लेफ्ट बॉडी पार्ट वर्क करना बंद कर देगा या उसे कुछ परेशानी हो जाएगी। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, ब्रेन को हमेशा ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये कंटिन्यूअसली पहुंचना चाहिए ब्रेन तक। A person faints if his heart is not able to send enough blood. कोई भी पर्सन फेंट मीन्स चक्कर आया था उसे, अगर उसके ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा रहा है। We must get enough sleep to rest our brain. हमें जो काफ़ी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है अब अपने ब्रेन को रेस्ट करने के लिए। Now children, do you know that our brain use approximately 20% द टोटल ऑक्सीजन, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 20% जो है ब्रेन यूज कर लेता है। पंप अराउंड आवर बॉडी एंड अबाउट 750 ml ऑफ ब्लड पंप्स थ्रू आवर ब्रेन एवरी मिनट, और हर एक मिनट 750 ml ब्लड हमारी ब्रेन में जाता है। ईच हाफ ऑफ द ब्रेन
कंट्रोल्स द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, हर एक हाफ ब्रेन का जो है अपने ऑपोजिट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कम्स स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज थिक बंडल ऑफ नर्व्स, ये काफी ज्यादा थिक मीन्स मोटे, बंडल ऑफ नर्व्स है मीन्स नसों का बंडल है, जो कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को आपकी बाकी बॉडी पार्ट से। इट पासेस थ्रू अ टनल ऑफ होल्स, ये जो है बहुत सारे जो टनल ऑफ होल्स है उसमें से गुजरता है इन योर बैकबोन और स्पाइन, आपके बैकबोन में या फिर स्पाइन में। द बोन ऑफ द स्पाइनल कॉलम प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, और जो बोन है स्पाइनल कॉर्ड का वो आपके प्रोटेक्ट करता है इसे डैमेज से। नेक्स्ट कम्स नर्व्स। नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवे फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स का काम क्या है? नर्व जो नसें होती हैं इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। दे ट्रांसफर मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन दैट इट कैन फंक्शन एफिशिएंटली। ये क्या करता है? पहले ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है और फिर ब्रेन का मैसेज बाकी बॉडी ऑर्गन्स को या बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। द ब्रेन एंड द नर्व्स आर मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व कॉल्ड द न्यूरॉन्स। ये जो ब्रेन है, ये जो नर्व्स हैं, ये किससे बने होते हैं? ये न्यूरॉन से बनते हैं। ये कुछ तरीके के सेल होते हैं, आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन। द ब्रेन हैज मोर देन 10 बिलियन नर्व सेल्स। ब्रेन में आपको 10 बिलियन से ज्यादा नर्व सेल्स मिलेंगे। न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस। न्यूरॉन में जो है सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है। दे हैव डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इसमें आपको डेंड्राइट्स और एक्सॉन मिलेंगे। डेंड्राइट्स ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन को सेल की बॉडी तक पहुंचाते हैं। एंड एक्सॉन टेक्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और एक्सॉन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को वापस ले जाना। तो ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं इधर और एक्सॉन का काम है उस इंफॉर्मेशन को वापस कैरी ऑन करना। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। फर्स्ट कम सेंसरी नर्व्स। सो दीज नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंसरी नर्व का क्या काम है? ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है जैसे कि आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, इन सब से जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर आते हैं आपके मोटर नर्व्स। These nerves carry message from the brain to different body parts. ये जो nerves है ये क्या करते हैं? ब्रेन से different body parts तक आपके मैसेज को पहुंचाते हैं। फिर आते हैं mixed nerves. These nerves carry message to the brain as well as bringing order from the brain. ये nerves क्या करते हैं? मैसेज को कैरी ऑन करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ऑर्डर्स को ब्रेन से लाते हैं और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक या बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। Next comes reflex action. Reflex actions are used to protect the body automatically. They take us away from objects that might hurt us before any harm. So आपको जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मॉस्किटो का एग्जाम्पल लिया था। मान लेते हैं कि सामने एक कैंडल जल रही है आपके और आप जो है उसको टच करने की कोशिश करते हो, जलती हुई कैंडल को टच कर रहे हो, तो क्या होता है? जैसे ही आपकी उंगली उसके फ्लेम तक लगती है आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन का कमाल है। तो जैसे हमारे हाथ के नर्व्स को पता चला कि ये चीज़ गर्म है, हमने जैसे उसे छुआ हम अपने हाथ को एकदम से पीछे कर लेते हैं। तो आप ये है रिफ्लेक्स एक्शन, मीन्स गर्म चीज़ को छूते ही हमारे ये जो हाथ के जो नर्व्स हैं वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गर्म है। फिर ब्रेन क्या करता है? वापस से मैसेज सेंड करता है कि गर्म चीज़ है तो हाथ को हटा लो। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को किसी भी डेंजर से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे आग जल रही है, सेंसरी नर्व यहाँ पे है, स्पाइनल कॉर्ड ये है। सेंसरी नर्व टेल्स स्पाइनल कॉर्ड दैट फ्लेम इज हॉट। तो ये जो सेंसरी नर्व है ये स्पाइनल कॉर्ड को बता रहे हैं कि ये जो आग है ये गर्म है। ना स्पाइनल कॉर्ड सेंड मैसेज थ्रू मोटर नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मोटर नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज को भेजता है अपने हाथ को। एंड इट टेल्स टू मूव हैंड, वो कहता है कि हाथ को दूर कर लो। तो आप देख सकते हो हाथ को कैसे पीछे किया जा रहा है। तो सेंसरी नर्व ने क्या किया? गर्म होने का एहसास ब्रेन को दिया। अब ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने
हाथ हटाने का जो आदेश था वो मोटर नर्व्स को दिया कि आप हाथ हटा लो। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। इफ यू पुट योर हैंड ऑन अ हॉट स्टोव पे अगर हाथ रखते हैं, you immediately remove your hand before the message my hand is on a hot burning stove gets to your brain। तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है कि मेरा हाथ एक गर्म स्टोव पे है। This is because a signal is passed directly from the sensory nerve via a connecting nerve to a motor nerve and to remove your hand, and this is called reflex action। तो जो भी आपको मैंने समझाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि कैसे हम एक्ट करते हैं जब भी हमारे साथ कोई भी हार्मफुल सिचुएशन होती है। Now children, let's move on to test your skills. Here you have to write true or false for the following. Nerve cells are known as nephrons। क्या nerve cell को nephron कहते हैं? Write true or false. The spinal cord originates from the medulla। Spinal cord medulla से start होता है। So what you have to do? You have to write whether the given statements are true or false. So do it yourself. Next comes sense organs. So a specialized organs such as eye, ear, tongue, nose and skin that are sensitive to a stimulus such as sounds, light, smell etc. is known as sense organ। ऐसे बॉडी पार्ट्स हमारे जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके या फिर नॉइज को या फिर स्मेल को, ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। दीज ऑर्गन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ब्रेन को सेंड करते हैं सेंसरी नर्व्स के द्वारा। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इन्फॉर्मेशन। अब ब्रेन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है एंड टेल्स अस व्हाट वी हैव सेंस, और ये बताता है कि क्या चीज़ हमने सेंस की है। लेट्स कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन। तो चलिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में। पहला आता है आई। सो आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड। आई क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें अलग अलग चीज़ें देखने में। द आईज आर सेंड इन बोनी सॉकेट्स इन द स्कल। ये जो आई है ये जो है सेट होते हैं हमारे आई मीन्स बोनी एक सॉकेट होता है उसके अंदर ये आईज फिक्स होती हैं एंड दे आर फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आईलेट्स एंड आई लैशेस। और इन आईज को आईलेट्स से और आई लैशेस ये जो आई हेयर है इनसे प्रोटेक्ट किया जाता है। विच कीप्स द आई क्लीन एंड डस्ट फ्री। जो क्या करते हैं? आईज को क्लीन और डस्ट फ्री रखते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये आपका प्यूपिल है, जो ब्लैक का कलर का हिस्सा होता है आपकी आंखों के बीच में वो प्यूपिल है, और ये जो बड़ा हिस्सा है ये है आपका आइरिस। वाइट पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा एंड ऊपर आप पलक आपकी जो पलकें हैं उसे हम आईलेट कहते हैं, और उस पे जो पलकों पे जो बाल होते हैं उन्हें हम आई लैशेस कहते हैं। सो दीज ऑल प्रोटेक्ट द आईज। एवरी टाइम वी ब्लिंक, जितनी बार भी हम ब्लिंक करते हैं our eyes get clean, हमारी आंखें साफ होती हैं। The eye and the brain together help us to see। आई और ब्रेन हमें एक साथ देखने में हेल्प करते हैं। Now here you can see different parts of the eye: iris, lens, cornea, retina and optic nerve। So these are the parts of the eye। We can see an object when light bounces off the object। हम किसी भी चीज़ को तब देख पाते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर से लाइट गुजर के जाती है। and enters the eye through a clear transparent area called cortina। और ये जो इमेज है वो हमारे आँखों में कैसे जाती है? कॉर्निया के थ्रू जाती है। बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। कॉर्निया के पीछे आपको आइरिस दिखेगा। इट्स द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड डिटरमाइंस आई कलर। ये आई का कलर डिटरमाइन करता है। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल। आइरिस के बीच में आपको प्यूपिल दिखाई देगा। द प्यूपिल विच लुक्स लाइक ब्लैक स्पॉट इज एक्चुअली एन ओपनिंग इन द आइरिस। ये जो प्यूपिल जो हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है ये क्या है? ये कुछ नहीं है, एक ओपनिंग है हमारी आईज में। दैट लेट्स लाइट इन टू द आई, जो क्या करता है? लाइट को हमारी आंखों में घुसने में हेल्प करता है। मसल्स इन द आईरी मेक द प्यूपिल बिगर। ये जो मसल्स हैं आईज में वो प्यूपिल को कभी कभी बड़ा बना देती हैं या फिर छोटा बना देती हैं, डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। कैसी लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्यूपिल का साइज भी बड़ा या फिर छोटा होता रहता है। When it is dark outside, जब बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, प्यूपिल बिकम्स लार्जर, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और जब काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो धूप में हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है।
बिहाइंड द प्यूपिल इज क्लियर लेंस, प्यूपिल के पीछे आपको एक काफी क्लियर लेंस दिखाई देगा। ये लेंस क्या करता है, पिक्चर को फोकस करता है, तो जो भी इमेज मेरे सामने है वो फोकस करता है मेरी आईज पे, ताकि रेटिना पे, ताकि वो मुझे पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर दिखाई दे। देयर आर टाइनी नर्व्स इन द रेटिना, रेटिना में आपको बहुत छोटे छोटे नर्व्स मिलेंगे। These nerves send the message to a big nerve, ये nerves क्या करते हैं, बड़े nerve को मैसेज सेंड करते हैं, जिससे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। Then the optic nerve carries message to the brain, अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, मैसेज को कैरी ऑन करता है ब्रेन तक। The brain understands and tells us what you have seen, ब्रेन जो है इन सब बातों को समझता है और बताता है कि हमने क्या देखा है। Next comes ear. So the children, the ear are the organ of hearing, ये सुनने के काम आते हैं। इनके भी 3 पार्ट होते हैं, पहले आता है आपका आउटर ईयर, फिर आता है मिडिल ईयर, फिर आता है आपका इनर ईयर, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ये जो पार्ट है ईयर के, वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, जो सुनने में हेल्प करते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। इट इज़ लाइक अ फनल, ये आपको देख सकते हो एक फनल की तरह दिखते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड को कैच करते हैं और सेंड करते हैं उसे मिडिल ईयर तक। मिडिल ईयर में आपको एक ईयर ड्रम मिलेगा, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। सो ये ईयर ड्रम होता है मिडिल ईयर में। व्हेन साउंड फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम, जब साउंड जो है इस ईयर ड्रम पे जाता है तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है। ईयर ड्रम इज कनेक्टेड टू 3 टाइनी बोन्स, ये छोटे छोटे 3 टाइनी बोन्स से कनेक्टेड है। दीज वाइब्रेट पास ऑन द इनर ईयर, और ये वाइब्रेशन क्या है, अंदर वाले जो इनर ईयर है वहां तक पहुंचता है। Here the nerve send the signal to the brain, और यहाँ पे इनर ईयर में जो है नर्व्स जो है वो क्या करते हैं, सिग्नल को ब्रेन तक सेंड करते हैं। नेक्स्ट कम्स नोज। सो दिस इज योर नोज चिल्ड्रन। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, हमारा जो नोज है वो हमें स्मेल और ब्रीथ करने में हेल्प करता है। दिस इज योर नोज। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, स्मेल क्या है, स्मेल एक तरीके का केमिकल है जो एयर में होता है। एट द अपर एंड ऑफ योर नोज देयर आर मिलियंस ऑफ हेयर, आपके नोज के ऊपर वाले पार्ट में बहुत सारे हेयर होते हैं। हेयर लाइक नर्व सेल्स होते हैं, हेयर जैसे नर्व सेल्स आपको दिखेंगे। When the chemicals reach these cells, जब ये केमिकल्स इन सेल्स तक पहुंचते हैं तो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। एंड these nerves are called olfactory nerves, और इन नर्व्स को हम olfactory nerves कहते हैं। The brain then recognizes the smell, और ब्रेन फिर क्या करता है, उस स्मेल को पहचानने की कोशिश करता है। So this is a nostril जहाँ से आप ब्रीद इन करते हैं, and this is olfactory nerve जो ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है। फिर बारी आती है आपके टंग की। We taste with our tongue, हम अपने टंग से टेस्ट करते हैं। The surface of the tongue has many taste buds, हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। आप कह सकते हो टंग को जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स हैव नेवर एंडिंग, हैज नर्व एंडिंग्स, एंड व्हेन फूड एंटर द माउथ इट टचेस द टेस्ट बर्ड, जब जैसे खाना हमारे मुंह में जाता है वो टेस्ट बर्ड को टच करता है। देन दीज बर्ड्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स एंडिंग, ये जो टेस्ट बर्ड्स है ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं नर्व्स को। डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, ये जो अलग अलग एरिया हैं टंग के ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एंड ये जो है स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर, इन सारे टेस्ट को उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं और हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। Now children, do you know over 3000 taste buds are present in our tongue, आपको पता है कि 3000 से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स है हमारे टंग में। एंड दे डिटेक्ट द 4 मेन टेस्ट, ये 4 मेन टेस्ट को डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हर एक टेस्ट बर्ड जो भी प्रेजेंट होता है इसमें वो हमारे टंग के डिफरेंट पार्ट में होता है। द टिप ऑफ द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट, तो हमारे जो टंग का जो टिप होता है, जो कोना होता है, वहाँ पे आप स्वीट टेस्ट को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स स्किन। द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो बाहर का कवरिंग है वो है हमारा स्किन। इट इज द सेंस ऑर्गन दैट सिग्नल्स द सेंसेशन ऑफ टच, ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो टच के सिग्नल सेंसेशन को बताता है, जैसे कि टच का सेंसेशन, हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा,
इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है स्किन। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से और इन्फेक्शन से। नेटवर्क ऑफ नर्व इन द स्किन सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन, हमारे स्किन के नीचे बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो सिग्नल को ब्रेन तक भेजते हैं और हमें रफ, स्मूथ या फिर टेम्परेचर बताने में, पेन फील करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। स्वेट ग्लैंड सेट स्वेट थ्रू पोर्स, स्वेट ग्लैंड मीन्स जो पसीने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेट को निकालती है इन छोटे छोटे पोर्स से जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट हैं। एंड व्हेन योर बॉडी गेट्स हॉट, जब आपकी बॉडी गर्म होती है, द स्वेट ग्लैंड्स मेक अ लॉट ऑफ स्वेट, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। एंड कूल्स यू डाउन, और ये क्यों आता है पसीना? ताकि आपको ठंडा फील हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, the spinal cord and the network of nerves. The brain has three main parts, the cerebellum and the medulla oblongata. The spinal cord is a thick bundle of nerves connecting your brain to the rest of your body. The nerves form a sophisticated relay network between the brain and the various parts of the body. Nerves are of three types: sensory nerves, motor nerve, connecting or mixed nerve. Reflex actions are used to protect the body automatically. Sensory action areas of the brain touch such as touch, smell, taste, hearing and sight receive message from our sense organs like skin, nose, tongue, ear and eyes. Now let's move on to new words. First word is cerebrum. It is the largest part of the brain that is responsible for thinking, reasoning, memory and etc. Next comes cerebellum. It means little brain, it controls balance, movement and coordination of the muscles. Next comes medulla, the brain stem that connects the brain to the spinal cord. Spinal cord is the thick bundle of nerves connecting your brain to the rest of your body. Neurons are highly specialized nerve cells. Optic nerves, the nerves that carries the electrical message from the retina to the brain. And papillae, these are called taste buds. These are hundred of small bumps on the tongue. Now children, let's move on to book exercise, and A exercises take the correct option. So reflex actions are controlled by eye, brain, spinal cord or both B and C. So it is controlled by both brain and spinal cord. Now which part of the brain works even when we are asleep? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो तब भी वर्क करता है जब हम सो रहे होते हैं? So is it cerebrum, cerebellum, medulla or all of these? So it is medulla. So do the rest of the questions yourself children, it's your homework. Now children, let's move on to B part, which is fill in the blanks. The first one is the nerves connect the brain to the spinal cord. The brain is the control center of the human body. Rest questions are your homework. Now let's move on to write true or false for the following sentences, which is C exercise of your book. Here the first one is the right side of the cerebrum controls the right side of the body. Is it true or false? So it is false. It controls the left side of the body. The cerebrum is bigger than cerebellum. So yes, this is true. So do the rest as your homework. Now let's move on to the exercise. Write one word for each of the following. So bundles of fibers that link all parts of the body to the brain is called spinal cord. And the fourth one is watering of the mouth is this action. It is sensory action. So do the rest two questions as your homework. Now let's move on to E part, which is answer the following questions. So children, here the first question is name the organs of the nervous system. So the organs of the nervous system are brain, spinal cord and network of nerves. These are the parts of nervous system. Now children, you have to do the rest of the questions that are remaining here as your homework. So find out the answer from your book, read it again, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.